بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ فٹنس کا دور ہے۔ ہر بندہ صحت تندرستی کے لیے بہت زیادہ محنت کر رہا۔ جتنی ہسپتالیں اب ہیں پہلے نہیں تھیں، ڈاکٹر اب ہیں پہلے نہیں تھے، دوائیں اب ہیں پہلے نہیں تھیں، میڈیکل سٹور اب ہیں پہلے نہیں تھے، اور جتنا صحت اور تندرستی کے انکشافات اور ریسرچ اب ہے پہلے نہیں تھی۔ کیوں؟ اس کے باوجود بھی بیماریاں زیادہ ہیں، اس کے باوجود بھی مریض زیادہ ہیں، ڈاکٹر عاجز آ گئے ہیں، ہسپتالوں کے اوپر فلور کے فلور بن رہے، لفٹیں لگ رہی، اور بیڈ کم ہوتے ہیں، مریض نیچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے علاج معالجے کی وہ سہولت نہیں ہوتی جو کہ علاج کے لیے مطلوب ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے کھانا پینا زندگی کا حصہ بنا لیا۔ زندگی کا حصہ صرف کھانا پینا بنا لیا۔ کہ کوئی گھر ہے تو اس میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ کچن کتنا اچھا ہے اور پھر لیٹرین کتنا اچھا ہے، ٹوائلٹ۔ زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا بن گیا، اور جس زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا بن جائے تو اس میں تو مریض ہی آئیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے پوری تاریخ انسانیت میں جنگوں سے اتنے لوگ نہیں مرے، فاقوں سے اتنے لوگ نہیں مرے، وباؤں سے اتنے لوگ نہیں مرے جتنا کھا کے لوگ مرے ہیں۔ ایک بہت بڑے معالج ہیں، وہ اپنا کلینک کر رہے تھے، حکیم سعید صاحب رحمت اللہ علیہ۔ تو ایک بڑا آدمی ان کے پاس آیا، پوچھا حکیم صاحب یہ کس مرض کے مریض ہیں؟ کہنے لگے جو ان سے پہلے آئے تھے وہ، جو یہ آئے ہیں یہ، اور جو ان کے بعد آئیں گے وہ، یہ سب کھانے کے مریض ہیں۔ کھانا ہوتا ہے، مشقت نہیں ہوتی۔ کسی نے پوچھا کہاں زیادہ نہ کھا پیٹ بڑھ جائے گا، اس نے کہا نہیں، کھا کے بیٹھنے سے پیٹ بڑھتا ہے، زیادہ کھانے سے پیٹ نہیں بڑھتا۔ جس کھانے کے بعد مشقت نہ ہو اور پسینہ نہ نکلے۔ پسینہ نکالنے کے دو راستے ہیں، ایک یہ ہے کہ ایسے پانی میں تیراکی کی جائے جو نیم گرم پانی ہو۔ یہ جتنے بڑے بڑے کلب ہیں ان میں وہ پانی ہوتا ہے، اسے سٹیم کہتے ہیں۔ وہ پانی ہوتا ہے، اس کے بعد ایک سٹیم دی جاتی ہے جس سے جسم سے پسینہ نکلتا ہے۔ پسینہ فٹنس کے لیے پسینہ بہت ضروری ہے، زندگی کی فٹنس کے لیے اور زندگی کے صحت کے لیے۔ ہاں ہمارے ہاں یہ لارنس گارڈن ہے، ریس کورس ہے، اس میں بڑے بڑے ایک کلومیٹر کے ٹریکس بنے ہوئے ہیں۔ دنیا کے مصروف ترین لوگ اور دنیا کے مالدار ترین لوگ اور بڑے بڑے عہدوں اور شعبوں والے وہ اس پہ دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، واک کرتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں۔ ان کو اس موسم میں دیکھیں، کیا پسینہ آنا چاہیے؟ پسینہ ان کے کپڑوں سے بہہ رہا ہوتا ہے، ان کا چہرہ مطمئن ہوتا ہے کہ ہمیں صحت مل رہی۔ اس پسینے کے راستے سارا یورک ایسڈ نکل گیا، جو کریٹینن گردوں میں پڑنا تھا اور جس سے ڈائلائسس ہونے تھے وہ نکل گیا۔ اس پسینے کے راستے سارا یوریا نکل گیا جو جوڑوں میں بیٹھنا تھا اور جس نے پتھری کا ذریعہ بننا تھا، پتے گردے مسانے کی پتھری کا ذریعہ بننا تھا، وہ پسینے کے راستے سارا نکل گیا۔ اور اسی پسینے کے راستے جسم سے وہ گندے مادے نکلے جن کو ڈاکٹروں نے اور ٹیسٹوں نے مختلف نام، کیلسٹرول ٹائپ نام دیا، پسینے کے راستے سارا نکل گیا۔ فٹنس کا دو نظام ہے، ایک ہے روزے کے لیے فٹنس، ایک ہے پھر انہی ایام میں۔ اب ابھی ساتھ ہمارے ریس کورس ہے، ساتھ ہی لارنس گارڈن ہے۔ صدیوں پرانے یہ دونوں باغ ہیں لاہور کے، اور لاہور ویسے بھی باغوں کا شہر ہے۔ آپ جائیں، اب بھی آپ کو ٹریک پہ بھاگتے دوڑتے عورتیں اور مرد ملیں گے۔ میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو ایک بابا تھا، بوڑھا، بالکل نہ منہ میں
दांत ना पेट में आंत। और उसने जो है ट्रैक सूट पहना हुआ और ऐसे दौड़ा जा रहा, सख्त गर्मी, हब्स के यही दिन, और पसीना पसीना, कोई 70 से अबव था, 70 से ऊपर बाबा था। मुझे एक बंदा कहने लगा बाबे को चांदा किए और ना तेरा पेट, ना तेरा वेट, ना तेरी कोई ताकत, ना तेरे अंदर कोई चर्बी, ना कोई चीजें तू डिजॉल्व करे, घुलाए, पसीने के जरिए सेहत चाहे, है कुछ नहीं। पर पता है वो चाहता क्या था? असल में वो ये चाहता था, किसी ने पूछा डॉक्टर हकीम किसे कहते हैं? कहा इजराइल को जिंदा ताबिंदा सेहतमंद बंदा जो बंदा पेश करे उसको डॉक्टर हकीम कहते हैं। आप सच्ची बात है, आज पसीना आया, मेरा तो बड़ा तबीयत सही बात है, यकीन जानिए मैं तो बहुत मतमैन हुआ। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि अपने दोस्तों को बताऊं सी कि इस पसीने के फायदे क्या हैं। एक वो पसीना है जो वेट लिफ्टिंग के साथ, एक वो पसीना है जो घोड़े की दौड़ के साथ, एक वो पसीना है जो गोल्फ खेल के, एक वो पसीना है जो वॉक करके भाग के, एक वो पसीना है जो स्टीम लेके भाप लेके अपने जिस्म को वार्म अप करना है, गर्म करना है। एक वो पसीना है जो हमारे वेट लिफ्टिंग के क्लब्स हैं और उनमें उठा रहे हैं वजन और वर्जिश कर रहे हैं यूं झुक के यूं उठ के और पसीने से शराबोर। और एक वो पसीना है जो रब के सामने खड़े होके रब की मोहब्बत में और रब के ताल्लुक में और मदीने वाले के ताल्लुक में, और उसमें कतरे बह रहे, चटाइयां भी गीली हो रही, जिस्म भी गीला हो रहा और दिल का सारा जंग उतर गया और रंग चढ़ गया और मदीने वाले से बातें और गुफ्तगू करने का ढंग आ गया। वहां खुशकिस्मत पसीना है, कितने पाउंड पसीना बहा। मेरा तो जी है पंखे बंद कर दें, एग्जॉस्ट बंद कर दें और पसीना और आए। जोड़ों का दर्द इस पसीने का इलाज है, कमर का दर्द पसीने का इलाज है। मुझे ये बताएं, कमर में मालिश करने के बाद बड़ी बड़ी दवाओं के बाद उसे बर्फ दी जाती है, ये ठंडक दी जाती है, पसीना दिया जाता है, गर्मी दी जाती है। ये मोहरों का इलाज है, यह आसाबी खिंचाव तनाव का इलाज है। उन लोगों से पूछो जो दिन रात एयर कंडीशन के नीचे बैठते हैं, उनसे पूछो। हम गए पिशावर, मेरी गाड़ी है जो सहरा में जाती है, उसके पीछे बॉडी रखवानी थी, मार्क्स है ना, उसकी गाड़ी वो रखवानी थी बॉडी, सहरा में गाड़ी जाती है। हम गए तो उनसे बातचीत की, उन्होंने बिल बना के दे दिया। थोड़ी देर हुई, कोई 10-11, 11:30 बजे का वक्त, और उन्हें कि जी हमारी अब थोड़ी सी ब्रेक है, टी ब्रेक है, ठीक है आप भी हमारी टी ब्रेक में शामिल हो। जितने भी बैठे थे एयर कंडीशन के नीचे, कुर्सियां लगी हुई, कंप्यूटर लगे हुए, सबको एक समोसा और एक चाय आई। पता नहीं मेरे जी में क्या आया, बिल तो बन गया, उन्होंने दे दिया, हम गाड़ी दे के वापस आ गए कि हम आपसे बॉडी ले जाएंगे। तो मैंने कहा कि मैंने अपना तारुफ कराया कि मैं हकीम हूं, इस तरह, और मेरे जी में था कि इसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, टेंशन, गैस, कब्ज, बादी और तबखीर के मरीज मुझे अभी कैश में मिलने हैं, अभी मिलने हैं। नकदहू सवादहू उधारहू फसादहू, देख अभी मिलने हैं। और वाकई ऐसा हुआ। अच्छा आप, फिर मैंने तारुफ, अच्छा एक मत जानता था, मुझे सारे नहीं जानते थे, वो हकीम साहब, उनसे तो वक्त नहीं मिलता। मैंने कहा अभी देखो नकद सामने आ बैठा हूं, और उनमें फिर लाइन लग गई बंदों की। हर बंदे की कैफियत यही थी कि मैं इतनी गोलियां खा रहा हूं। मुझे एक चीज बताएं, पसीने के बाद बेहतरीन नींद आती है। जितने भी लोग पसीना अपने जिस्म से निकालते हैं, एयर कंडीशन में सोने वाले को बेहतरीन नींद आती है जब वो मजदूर जो पसीना ईंटों के नाम पे, सड़क तोड़ने के नाम पे और ट्रक से सामान उतारने के नाम पे और सड़कें खोदने के नाम पे, तामीराती काम और मशक्कत वाला काम और लोहे को तोड़ने के नाम पे जिसको जिस्म को पसीना आता है, वो ऐसी नींद सोया हुआ होता है कि नींद न जाने टूटी खाट,
वो सोया हुआ होता है और ये मसाहरियों में, एयर कंडीशन में, आला लिबास में, आला कपड़ों में करवटें बदलता है और घड़ियां देखता है कि आज गोली ने इतने घंटे काम किया, उसके बाद गोली अपना काम छोड़ गई। रमे आशिकी तेरा शुक्रिया, रमजान तेरा शुक्रिया, तूने हमें गर्मी में फिटनेस का एक अनोखा अंदाज दिया। हम तो समझे थे कि हम तो घबरा गए थे, ये मुशक्कत है, हब्स है, हब्स से कहां भागेगा, मौसम ही हब्स का है, बोल कहां भागेगा तू, कहीं हब्स भेजा है, कहीं हब्स है, हब्स का मौसम ही है, ये तो रहेगा। लेकिन ये देख तेरा पसीना अल्लाह ने किन राहों पे लगाया। एक अल्लाह वाले के बकौल एक लफ्ज मुझे याद आया, फरमाया जो खून सरहदों की हिफाजतें करते हुए बहना था, जिहाद में सरहदों की हिफाजत करते हुए बहना था, आज वही खून फसाद में सड़कों में बह रहा है। कितनी बड़ी बात है। जो खून इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हुए जिहाद में बहना था, वही खून आज फसाद में सड़कों में बह रहा है। जिस पसीने को अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की मशक्कत में, अल्लाह के ताल्लुक में और अल्लाह के नाम लेने में बहना था, आज वो पसीना पता नहीं कहां कहां बह रहा। दिल्ली दरवाजे में, लाहौर में मुगलिया दौर का एक हम्माम है, कई बार गया, पुरानी चीजों से मुझे कुछ निस्बत है। वहां हम्माम था, वो क्या हम्माम था, बाहर से जितने भी मेहमान आते थे बादशाह को मिलने के लिए, वफद आते थे, वो सीधा उस हम्माम में जाते थे। एयर कंडीशन गाड़ियां तो नहीं थी कि अंदर थोड़ी सी धूल भी ना आए, वहां तो सारी धूल ही धूल थी। और जर्नैली सड़क से आते थे, अपना लाहौर का जीटी रोड है, ये काबुल से लेकर कलकत्ते और बंबई तक, उससे आगे राजकुमारी तक, ये सारा का सारा ये जर्नैली सड़क है और इसी से काफले चलते थे। वो सीधे हम्माम में आते थे और हम्माम में आके वहां के मुलाजमीन होते थे जो उनको नहलाते थे, धुलाते थे, लिबास बेहतरीन उनके पहना। उसके बाद वफद बादशाहों के यहां, वजीरों के यहां जाते थे। दूसरा, उसी हम्माम में खुद बादशाह भी आता था और वजीर भी आते थे, बड़े बड़े भी आते थे। उस हम्माम में एक ऐसी जगह भी है जहां के आग जला के एक भाप पैदा की जाती थी जिससे सख्त पसीना आए, सख्त पसीना आए। शाही किले लाहौर में मैं अंदर गया तो मरम्मत हो रही थी, मेरे एक साथी हैं फैसल साहब, मुझे वहां ले गए, अंदर जाए। उन्होंने कहा कि ये हम काली जगह थी जिसमें लकड़ियां जलाने के लिए बड़े बड़े टब तांबे के होते, वहां उसको मरम्मत किया जा रहा था। ये हम्माम है जहां स्टीम बनती थी। सेहत के लिए पसीना और भूख दो चीजें हैं। एक लफ्ज कह रहा हूं, अभी आप चौंकेंगे थोड़ी देर में। उसने कहा जी खा ले, नहीं मैं आजकल डाइट। ये डाइट क्या है बोलो, है ये फाके करना, कम खाना। उन्हें भी ये डाइट बोतल है, जबकि उसमें सबसे ज्यादा केमिकल होते हैं। ये डाइट है, मुझे डाइट दीजिएगा। क्यों? मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मेरा यूरिया यूरिक एसिड बढ़ गया, मेरी शुगर बढ़ गई, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। मैं डाइट पे हूं, मैं डाइट कर रहा हूं, मैं कम खा रहा हूं, मैं रोजे रखता हूं, मैं फाकों पे हूं। सारी साइंस फिर आके रोजे पे आ चुकी है, सारी साइंस फिर आके वक्फा देने पे आ चुकी है। सारी साइंस अपनी रिसर्च और तहकीक के बाद यह कहती है कि महीने में 3 रोजे रखने चाहिए। और मेरे आका मदीने वाले ने फरमाया कि जो महीने में 13, 14 और 15 के 3 रोजे रखेगा, उन 3 रोजों का नाम है अय्याम 20 के रोजे। कुदरत का निजाम वापस पलट रहा, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। हकीकत आ गई कि 2 चीजों में सेहत है। आपके मुल्क में तेजी से क्लब बन रहे हैं सेहत के लिए, फिटनेस के लिए, और ऐसे क्लब हैं जहां मशक्कत है,
जहां घोड़े के जरिए, तालाब के जरिए, लटकने के जरिए, फुटबॉल के जरिए, हॉकी के जरिए और दुनिया के मुख्तलिफ मशागिल के जरिए पसीना दिलाया जाता है, जिस्म को उठाया बिठाया जाता है। तरावी के नाम पे जो मुशक्कत होती है उठने बैठने की, पहले दौर में जितने पहलवान थे 100-100 दंड पेलते थे, 500-500 दंड पेले। आज आपने कितने दंड पेले? हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक जानने वाले हैं, करीबी है, अभी भी जिंदा है। वो कहने लगे पहले दंगल होते थे, कुश्तियां होती थी, बड़े मशहूर। एक था पहलवान, उसका नाम कीकर सिंह था, और उसको आज तक कोई बंदा जो है उसकी पीठ नहीं लगा सका था, कीकर सिंह की। और कीकर सिंह खुद जेब कुतरा भी था और बहुत कामयाब जेब कुतरा था, पहलवान भी था, जेब कुतरा भी था। हुआ यह कि अभी कुश्ती शुरू ना हुई, कीकर सिंह की किसी ने जेब काट ली। कीकर सिंह को बड़ी परेशानी हुई कि नैले पे दैला, शिकारी खुद शिकार हो गया। तो कीकर सिंह ने भरे दंगल में, भरी महफिल में, हजारों लोग थे, ऐलान किया कि मेरी जेब कट गई है और मैं खुद बहुत बहुत बड़ा कारीगर आदमी हूं, मेरी जेब कट गई है, जो मेरी जेब बताएगा कि जिसने काटी है, पैसे उसी के मैं वादा करता हूं। फिर उसको सिर्फ मैं ज़ियारत करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं है कौन, वाई का लाल। कहने हमारे मोहल्ले में एक मालशिया होता था और वो गले से बोलता था, इस तरह करके ना, ऐसे गले से बोलता था। तो कहने लगे उसने देखा कोई नहीं आया, थोड़ी देर हुई, उसके हाथ में मालिश करता हुआ आया और गाली दे के कहा जो जेब काटेगा फिर तुझे बताएगा। अच्छा अच्छा माई बाप आप हैं, अच्छा अच्छा आप हैं। उसके सर पे बकायदा पगड़ी बंधवाई कीकर सिंह ने। उन्होंने कहा तूने मेरी जेब काट दिया, मेरी जेब तो आज तक कोई काट नहीं सका, मैं खुद बहुत बड़ा उस्ताद हूं। और कीकर सिंह कहने लगे उसकी फिटनेस का राज जो होता था वो ये होता था कि जिस्म को कितना ज्यादा कम खिलाया जाए और मुशक्कत दिलाई जाए, उसमें से पसीना निकाला जाए। रोजा साइंस है, रोजा सेहत है, रोजा जिंदगी के लम्हात को बढ़ाता है, रोजा आपकी तंदुरुस्ती के लिए बेहतरीन जामिन है। रोजा सजा तो नहीं है, रोजा तो बेहतरीन जजा है। आप चाहें तो रोजे और तरावी के नाम पे सेहतयाब हो जाएं, आप चाहें तो फिर 60-70 हजार क्लब की फीस, 2 लाख क्लब की फीस, 4 लाख क्लब की फीस मुझे लोग बताते हैं, वहां जाएं, माल भी जाय करें, वक्त भी जाय करें, और यही पसीना और फिर खाने का शेड्यूल कि आपने छने अनछने आटे की रोटी खानी है, ये चीजें खानी है, व्हाइट मीट खाना है, फलां चीजें खानी है, इतना नहीं खाना, बस सिर्फ सुबह खाना है और शाम को खाना है। इस दौरान हल्का फुल्का कहवा, कोई जूस पी सकते हैं, बिल्कुल नहीं खाना, बस ब्रेकफास्ट और डिनर। ये रोजा है। आप कितने खुशकिस्मत हैं, अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने रमजान को लाके आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती और आपकी फिटनेस के लिए एक बेहतरीन तोहफा और पैकेज दे दिया। और इस पैकेज को देखो तो सही बनता क्या है। साइंस वापस लौट रही है कम खाने पे, डाइट के नाम पे वापस ला रही है, फाकों के नाम पे। और मैंने अपनी किताब में लिखा था, सुन्नत नबी और जदीद साइंस, 1997 में मैंने किताब लिखी थी। उसके वॉल्यूम में ये बात मैंने लिखी थी कि रोजे के ऊपर साइंस वापस आ रही है। जो दिमागी मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और असाब और जोड़ों के मरीज हैं, उनका वाहिद इलाज रोजा है। उनके जिस्म के अंदर से वो चीजें जलाओ जो चीजें उनकी बीमारी का जरिया बनती हैं। आपका जितना खुश खुराक इंसान हो, गर्मियों के रोजे में आखिरकार उसको भी भूख लगेगी। जितना कलंदर हो, कुल अंदर हो, सहरी इतनी करे, दुनिया के सारे पराठे और मुर्गे खा जाए और सारी रानें चबा जाए,
लेकिन उसको भी रोजा एक वक्त एहसास देता है, ये रोजा एहसास नहीं देता। ये बुनियादी तौर पे एहसास जो देता है वो अंदर का निजाम देता है कि मैंने सब बीमारियों को जला दिया है, आपको मैं बेहतरीन लाजवाब सेहत का पैगाम दे रहा हूं। और वो जो आपके अंदर वो बीमारियां थी जिसको आपने नाम कोलेस्ट्रॉल का दिया हुआ है, यूरिया का दिया हुआ है, यूरिक एसिड का दिया हुआ है, क्रिएटिनिन, पोटाशियम, इस किस्म की चीजों का जो नाम अनोखे अनोखे दिए हुए हैं, वो सारे अनोखे नाम पे उठा के मैंने झाड़ू फेर दिया है। रोजा हुस्न और जमाल लाता है, खूबसूरती लाता है। मलका कौन सी थी? कुलपुत्रा थी, कौन सी थी? उसकी सेहत के राज 3 हैं। अर्के गुलाब से नहाना, अर्के गुलाब से नहाना, रोजा रखना, रोजे से मुराद रोजा नहीं, भूखा रहना, सिर्फ सुबह और शाम खाना, बाकी भूखा रहना। और तीसरा, ऐसी मुशक्कत करना जिससे जिस्म इतना पसीना निकले कि 3 तह का कपड़ा भीगे। और उसके राजों में लिखा हुआ है, सेहत के राजों में यह है कि अगर 1 तह का कपड़ा भीगे, 1 तह का कपड़ा भीगे, तो समझ लो कि सेहत अभी आई नहीं, बीमारी अभी जाने को है। 2 तह का कपड़ा भीगे तो समझ लो बीमारी चली गई है, लेकिन कुछ बाकी है। अगर 3 तह का कपड़ा भीगे तो समझ लो बीमारी चली गई है, सेहत के आने की उम्मीद है। 3 तह का कपड़ा भीगे। सुकरात ने कहा था, मुझे 3 चीजें दे दो, मैं तुम्हें पूरी दुनिया को ऐसे आंखें बंद करके सारे आलम को बता दूंगा। तो पूछा कौन सी 3 चीजें? कहा खुले बर्तन में पानी, तस्बीह खाने के कटोरे, बाउल, कटोरे, खुले बर्तन का पानी, अनछने आटे की रोटी, तस्बीह खाने की देसी गंदम की, अल्लाह रोटी खिला रहा। 3 चीजें मुझे दे दो, एक खुले बर्तन का पानी, और आजकल गिलास, चाय के कप खुले हो रहे हैं, वापस वहीं आ रही है दुनिया। ऐसे थे जो नाक में लगते थे, छोटे छोटे पतले पतले गिलास, अब वापस कुशादा गिलास, कुशादा कप वापस आ रहे हैं। खुले बर्तन में पानी, अनछने आटे की रोटी और चमड़े की जूती, ये मुझे 3 चीजें दे दो। ऐसी चमड़े की जूती जिसका अपर लोअर दोनों चमड़े का हो, ये 3 चीजें दे दो, मैं तुम्हें सारी दुनिया यूं आंखों से देख के एक पल में बता दूंगा। लोग तो इस पसीने के लिए लाखों ज़ाय करते हैं, आपको मुफ्त में रब ने पसीना दे दिया, शुक्र किया करो। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में तशरीफ ले गए। गर्मी में एक बंदे को पसीना आया, उसकी पसीना टपक रहा था, तो आपने देखा और वो पसीने को ऐसे हाथ से साफ कर रहा था। फरमाया अल्लाह के बंदे, इस पसीने की कदर करना। जो पसीना अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की इबादत में आता है, उसके कतरे क़यामत के दिन शहीद के खून के बराबर तोले जाएंगे। कलब के कतरे नहीं तोले जाएंगे, रेस कोर्स के कतरे नहीं तोले जाएंगे। हाँ, वो फिटनेस भी ठीक है, इंसान को फिट रहना चाहिए, लेकिन तस्बीह खाने के कतरे, अल्लाह की मोहब्बत में बहे हुए कतरे, ये अल्लाह की बारगाह में शहीद के खून के बराबर तोले जाएंगे। सारी दुनिया तो पलट रही है इस वक्त फाकों की तरफ, डाइट की तरफ। सारी दुनिया आ रही है इस वक्त सादा ग़िज़ाओं की तरफ, और सारी दुनिया आ रही है इस वक्त सुबह शाम के खाने पे और भूखा रहने पे। डॉक्टर पहले कहते थे हर चीज खाओ, आज वही डॉक्टर है वो कहते हैं नहीं, इसमें इतनी कैलोरीज है, इसमें इतने ज्यादा जो है कैल्शियम है, इतना ज्यादा कोलेस्ट्रोल है, इतना। हमने आपकी कैलोरीज अभी तो वेस्ट करनी है, आप मजीद खा रहे हैं। हमारे एक दोस्त हैं, उनको 2 चीजों का बड़ा शौक है, एक शादियों का, एक कैलोरीज का हाफिज़ है बंदा। वो एक पल में ऐसे देखते ही कहेगा कि इस बंदे में इतनी, इस ग़िज़ा में इतनी कैलोरीज हैं और इसमें इतनी चीज है और मैं इतनी कैलोरीज ले चुका हूं, अब मुझे इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, मेरी कैलोरीज ज्यादा हो गई है, अब मैंने इसको वेस्ट करना कैसे है। उस वेस्ट करने के लिए बंदा वर्जिशें करता है, फिर वो बंदा लटकता है, कभी कहता मैं समंदर में होते लगाता हूं, कभी कहता मैं वॉक करता हूं, फिर उसको पसीना आता है, जितना उसके जिस्म की कैलोरीज वेस्ट होती हैं, फिर वो खुश होता है।
अंग्रेज जहां धूप होती है वहां स्पेशल सफर करके जहाज का जाते हैं। मेरे सामने अंग्रेजों के मुल्क के बंदे आए बैठे, मैं इनसे पूछूं, बकायदा जहाजों का सफर करके मुझे किसी मुल्क में ले गए, कहने लगे साहिल समंदर। देखा तो सारे के सारे बेचारे जो हैं वो धूप के अंदर समंदर में लेटे। मैं कभी चलो ठीक है देख लिया, चलो चलो बोल चलो। हम तुर्की में गए तो वहां एक बाजार है तुर्की में, उस जगह का एक अनोखा नाम है। क्या नाम है? जहां हम्माम है और हम्माम के साथ उनको स्टीम दिया जाता है। पता है किसी को नाम का? हम्माम है जिनके बारे में पीर रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया और शेख सादी ने भी फरमाया कि मैंने मिट्टी से पूछा, हम्माम में मिट्टी में मलते थे खुशबूदार, कि तेरे अंदर खुशबू कहां से आई? कहने लगे कुछ अरसा गुलाब की सोहबत में रही हूं, मैं गुलाब की सोहबत में रही, मेरे अंदर खुशबू आ गई। वहां हम्माम है और बंदा अंदर जाता है, उसको मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा जाता है और एक मरहला ऐसा आता है कि जिसमें स्टीम के साथ जिस्म का सारे के सारे मसामों से बीमारियां निकाल दी जाती हैं और पसीने के जरिए ऐसे बीमारियां खींच दी जाती हैं। अल्लाह की राहों में मशक्कत, अल्लाह की राहों में मोहब्बत और अल्लाह की राहों में बहने वाला पसीना, ये तो सेहत की दलील है। रूहानी सेहत तो मिल रही, ईमान बन रहा, अमाल मिल रहे, अल्लाह का ताल्लुक मिल रहा, कमली वाले मदीने वाले का इश्क मिल रहा, अल्लाह की याद में हमारे लम्हात गुजर रहे और अल्लाह के लिए भूखा रहना एक आशिक का बेहतरीन अंदाज है। मौला जब तेरा हुक्म होगा खाऊंगा, हुक्म होगा छोड़ दूंगा, मैं तेरा हूं, तू मेरा है, तू मुझे रमजान में आजमा के देख ले, इंशाल्लाह तेरी हर आजमाइश पे पूरा उतरूंगा। क्यों? मैं बंदा तेरा हूं, तो रब मेरा है। जहां इश्क का ये अंदाज चल रहा, वहां सेहत और फिटनेस का अनोखा अंदाज चल रहा, फिटनेस और अनोखा अंदाज चल रहा। रोजे के दौरान पानी इफ्तार सहरी में थोड़ा पिया जाता है या ज्यादा पिया जाता है? आजकल की साइंस बार बार क्या कह रही है कि कितने लीटर पानी पियो। बाकायदा लीटर होते हैं, इतने लीटर पानी पियो, आपके जिस्म को इतने लीटर पानी की जरूरत है। अगर इतने लीटर पानी ना पिए, आपके गुर्दे, आपके फलां चीजें बहुत ज्यादा मुतासिर होंगे और आप मरीज हो जाएंगे। रोजे के नाम पे जिस्म में पानी जाता है, रोजे के नाम पे जिस्म के अंदर से वो चीजें जिनको हमारी लिबार्ट्री मुख्तलिफ नाम देती है वो सारी खत्म हो जाती हैं। मुझे बेशुमार लोगों ने अपने तजर्बात बताए, शुगर का इलाज, सारी दवाएं एक तरफ और शुगर के लिए रोजा रखना सबसे बेहतरीन एक तरफ सारी दवाएं हैं, क्योंकि शुगर दो चीजों से होती है, एक टेंशन से, एक खाने से, बस। शुगर दो चीजों से होती है, एक वो है कि जिसने सारा दिन खाना है और बेतरतीब खाना है, और एक टेंशन से होती है। रोजे में दो चीजों का इलाज है। अल्लाह का जब प्यार, अल्लाह की मोहब्बत और इबादत आती है, अल्लाह ज़हन से बोझ और टेंशन खत्म करके अपनी यादों में लगा देता है और इंसान एंग्जाइटी, स्ट्रेस से निकल आता है, टेंशन से निकल आता है। और रोजे के नाम पे खुद खाने की तरतीब ऐसी है। और फिर गर्मियों का रोजा, मैंने कल भी कहा कि इंसान को जब रोजा तेज होता है, दस्तरखान पे कहता है कि बर्तन भी खा जाऊंगा, इतनी तेज भूख लगी है, लेकिन थोड़ी ही देर में भूख खत्म हो जाती है और बंदा कहता है कि अब मजीद खा नहीं सकता। हमारे एक दोस्त थे, मैं एक महफिल में गया, उसने क्या किया हुआ था, दो सेल होते हैं ना, छोटे छोटे दो सेल, इन दो सेलों को मिला के तार बनाई हुई थी। 7 बंदे को बैठा शाक लगाता था। 2 सेल पता नहीं कैसे उसने गुर बनाया, 2 सेल आपस में मिला के तार बनाए। वो बंदा यूं करता था, ऐसे ऐसे करता था। मैं पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? कहले कोई चीज चुभती है यहां। कोई चीज चुभती है। असल में ये ज्यादा खा रहा था और वो इसको खाने से हटाना चाह रहा था। उसके पास कोई गुड़ होगा, वो थोड़ी देर के बाद गैर महसूस तरीके से कपड़े के ऊपर लगाता
और कपड़े के अंदर उसको शौक लगता, हल्का सा झटका लगता। थोड़ी देर के बाद फिर यूं करता, वो हट जाता बड़ी सफाई से। मैं समझ गया, पीछे से उसको मैंने देख लिया। मैंने कहा खाना ही छोड़ दें। कह रहे फिर ये कौन खाएगा? मैंने कहा इसको तो छोड़, तो खाना छोड़ दे। लगता है तुझे ये खाने के झटके लग रहे हैं, खाने के झटके तुझे लग रहे हैं, तो खाना छोड़ दे। रोजा सेहत है, रोजा तकवा है, रोजा तंदुरुस्ती है, रोजा मैदे का इलाज है, रोजा तबखीर और गैस और बादी का इलाज है, रोजा पेट के बढ़ने और चर्बी के बढ़ने और वेट के बढ़ने का इलाज है, रोजा मोटापे का इलाज है, और पसीना जिंदगी की सांसें हैं। मुझे एक बच्चा गली में 1-2-3 दिन यहां वो बंदा ले आया, दुआ मांगे इस बच्चे को पसीना नहीं आता। हाँ, यहां बच्चा को ले आया, दुआ करें इस बच्चे को पसीना नहीं आता। आपका मेरे पास कई केस आते हैं, 2 केस बड़े खतरनाक होते हैं। बच्चा पैदा हुआ था, रोया नहीं था। इतना लाइलाज बीमारियां होती हैं उसको, जो बच्चा पैदा और रोए ना। एक वो जिस बच्चे को पसीना ना आए। आप तो सेहत और तंदुरुस्ती की अनोखी दलीलें लेके बैठे हैं। आप तो सेहत के राज पा के बैठे हैं, पसीना को जिस्म से निकाल के। आपकी मिसाल तो ऐसे है कि आप जिस्म को धो रहे हैं, इधर से पानी भेज रहे हैं, उधर से पानी आपके जिस्म की गैर जरूरी और मोहलिक जहरीली चीजों को निकल के पानी पसीने की शक्ल में निकल रहा है। साइंस की दलील है कि गर्मी में, सुने गौर से, गर्मी में जिसको पेशाब थोड़ा आए, पसीना ज्यादा निकले, उसको सेहतमंद कहना, और गर्मी में जिसका पसीना ना निकले, पेशाब तो वैसे ही थोड़ा आता है, उसको बीमार कहना। अनकरीब यह खतरनाक बीमारी में मुब्तला होगा। इस वक्त 3 किस्म के कैंसर बढ़ रहे हैं। एक ब्रेस्ट का कैंसर, एक स्किन का कैंसर, जिल्द का कैंसर, और एक खवातीन का कैंसर, ओवरीज का। ये 3 किस्म के कैंसर बढ़ रहे हैं। इन तीनों कैंसर के होने की बड़ी वजह यह है, साइंस कहती है, खवातीन ने मुशक्कत करना छोड़ दी है। चक्की के नाम पे, कुएं से पानी भरने के नाम पे, घर पे झाड़ू देने के नाम पे, टाकी डस्टिंग के नाम पे, टाकी फेरने के नाम पे, कुकिंग करने के नाम पे, प्याज काटने और चम्मच हिलाने के नाम पे, वो जो खातून हर वक्त हरकत में रहती थी, वो सारी चीज खत्म हो गई। हत्ता कि आप बिस्तर लपेटे तो बहुत अच्छी खासी वर्जिश हो जाती है। सर्दी के बिस्तर तो वैसी अच्छी खासी वर्जिश करवा देते हैं। खातून करती थी, उसको पसीना आता था, उसके जिस्म के अंदर थोड़ी सी मुशक्कत और हरारत पैदा होती थी, और खातून सेहतयाब रहती थी। आज घर मुलाजमों का फौज है और मुलाजिम सेहतमंद हैं। ये जितना भी गरीब होगा, बच्चा एक चोले में होगा, नीचे पजामा अक्सर नहीं होगा, छोटा सा बच्चा, और बिल्कुल सेहतयाब होगा। उसे कोई किसी किस्म के पोलियो के कत्ते भी नहीं पिलाए जाते, और कोई घर के बाहर निशान भी नहीं लगाया जाता, और उसका बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक, हेपेटाइटिस उसको नहीं चिपकता, और बीमारियां उसके करीब नहीं आती। उसकी बुनियादी वजह, वो जिंदगी के ऐसे माहौल में रहते हैं जहां उनको सादा ग़िज़ाएं मिलती हैं, पेट भर के खाना नहीं मिलता, और उनको जिस्म में पसीना बहुत ज्यादा आता है। तो पसीना डरने वाली चीज है या खुशामदीद मरहबा वाली चीज है? उन्हें कि जी तस्बीह खाने में आए आखिरी अशरा गुजारने के लिए, कौन कौन आए? आज हाथ खड़ा करें। बहुत सारे लोग आए। उन्हें कि ये क्या? उन्हें कि बाबा बस चल, बैग उठा, चल वहां चलते हैं कहीं और, शाही किले में या अनारकली में जाके किसी फुटपाथ पे जाके ठिकाना लगाते हैं। सारी दुनिया तो इस पसीने को बहाने के लिए पैसे ज़ाय कर रही है। आपको तस्बीह खाने में मैंने पसीना अल्लाह की तौफीक से दिलवाया, आपने मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया है?
आपको तो एक एक बंदे को मुझे शुक्रिया का खत लिखना चाहिए। 3 चीजों का शुक्रिया, तीन जिसने बंदे का शुक्र अदा नहीं किया उसने रब का भी नहीं किया। 3 चीजों का शुक्रिया। सबसे पहली चीज यह है कि मैं अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह खिला रहा, अल्लाह जरिया मुझे बना रहा, मैं आपको सादा खाना खिला रहा हूं। मुरज़्ज़म खाना खिलाएं फिर देखें आप सेहतयाब होते या नहीं होते। सादा खाना है और बेहतरीन खाना है और लजीज खाना है। और दूसरी चीज, आप इमली आलू बुखारे का जो पानी पी रहे, ये तो शुगर का, हेपेटाइटिस का, ब्लड प्रेशर का, मैदे की तेजाबियत, एसिडिटी का और किसका, हाई ब्लड प्रेशर, नींद की कमी, आसाबी, इसका तो बेहतरीन इलाज है। मैं कई दफा बता चुका हूं जो आज भी आपने इमली आलू बुखारे का पानी पिया है। और सादा ग़िज़ाएं। और बेहतरीन चीज जो है वो ये है कि आपका पसीना निकल रहा और आपको मुशक्कत हो रही। जितना कामयाब पहलवान होता था, जितना कामयाब, अभी भी एक शाही किले के साथ जो है एक अखाड़ा है। उस दिन मैं, हम सिंध के मेहमान थे, उनको लेके गया तो स्पेशल फिर उन्होंने हमें अपनी कुश्ती दिखाई। अब भी है अखाड़ा है, गालिबन शैये का, किसका, उस अखाड़े में जो है अब भी कुश्ती होती है। बेहतरीन पहलवान वो होता है जिसका पसीना खारिज हो मुशक्कत के नाम पे और दंड पे ले। और दंड किसको कहते हैं? खड़ा होना, बैठना, उठना बैठना, उठना बैठना, उठना बैठना। वो एक थे अल्लामा शब्बीर बुखारी, यहां जहांजेब बुलाक इकबाल टाउन में 3-4 साल, 100 साल की उम्र से ज्यादा में फौत हुए। इंस्पेक्टर थे वो, मदारिस के, स्कूलों के इंस्पेक्टर उस दौर में, पूरे डिवीजन के। वो क्या करते थे, किसी को टीचर भर्ती करना होता था, उनकी 2 शर्तें होती थी। अपनी स्टिक सामने रख के करते थे, इसका जनाजा पढ़ा। जनाजा पढ़ाना तुझे आता है? स्टिक सामने रख के ना कहते थे जनाजा पढ़ा। और जिसको भर्ती करना होता था उससे पूछते तेरा साइकिल है? वो कहता हाँ है। कहा ठीक है, मेरे सामने डांड पेल, उठ बैठ, उठ बैठ, उठ बैठ। और उसका स्टेमिना देखता था। जिस वक्त वो देखता था ना कि बंदा मुक गया है, फारिग हो गया है, उसको भर्ती नहीं करता था। और जब बिल्कुल बंदा उठने बैठने में सेहतयाब होता था, कहा ठीक है, तेरी अगर दूर पोस्टिंग हो गई तो पढ़ाने जाएगा, सुस्ती के नाम पे घर नहीं बैठा रहेगा, लिहाजा जा, तुझे टीचर सिलेक्ट कर दिया। मेरा अल्लाह भी कहता है कि ठीक है, तेरी सिलेक्शन होनी है, जरा उठ बैठ के दिखा तो सही, तरावी भी पढ़ के दिखा, ठीक है, और जरा उठ बैठ के दिखा। मौला कमजोर हूं, ठीक है, ज़ईफ हूं, ईमान भी कमजोर है, जिस्म भी कमजोर है, लेकिन तू 20 के अलावा 40 कहेगा, मैं तुझे पढ़ के दिखाऊंगा तेरी रहमत और तेरे करम से। क्यों? तूने हुक्म फरमाया कि खा, मैंने खाया, तूने फरमाया छोड़ दे, मैंने छोड़ दिया। फिर सारा दिन मौला तेरे नाम की बरकत से भूखा प्यासा रहा। आज मैं स्पेशल गुस्ल खाने में अल्लाह के मेहमानों की मैल के चंद कतरे अपने ऊपर गिराने गया। पहली दफा मैंने इस गुस्ल खाने में गुस्ल किया कि अल्लाह के मेहमान, मदीने वाले के मेहमान इस गुस्ल खाने में नहाएं, कुछ छींटे मेरे ऊपर भी पड़ जाएं। यकीन जाने मैंने जाके रूहानी गुस्ल किया तो मुझे बहुत सुकून मिला। एक ठंडे पानी से सुकून मिला और एक मेहमानों की वजह से मुझे बहुत बहुत राहत पहुंची। आपको अल्लाह ने ये नेमत दी है, पसीना नेमत दी है, रमजान का रोजा नेमत दी है, और अल्लाह की तौफीक से ये सेहत और निजाम, एक फिटनेस का निजाम दिया है। इसकी कदरदानी बढ़ाते चले जाएं, इसकी कदरदानी करते चले जाएं, बहुत ज्यादा करते चले जाएं। और फिर तस्बीह खाने में दस्तरखान जिस्मानी भी बेहतरीन है, रूहानी भी बेहतरीन है। सुबह दर्स के नाम पे, तहज्जुद के नाम पे, सहरी के नाम पे, नूरी लुकमों के नाम पे, फिर जिक्र के नाम पे, मुराकबे के नाम पे ये रूहानी दस्तरखान लगा। और फिर आपको आराम का मौका दिया, आपने इशराक चाश्त पढ़ी, आराम का मौका दिया। फिर जोहर के नाम पे रूहानी दस्तरखान लगा, तालीम के नाम पे रूहानी दस्तरखान, और सूरतुल काफिरून। अल्लाहु अकबर। वो तो जो बंदा ये चाहता है कि मेरे घर से जादू जाएं और जिन्नात जाएं और बंदिशें जाएं और मेरे घर के अंदर बीमारियां, मेडिकल स्टोर खत्म हो जाए और मेरे घर से झगड़े खत्म, बीमारियां खत्म, आपस में नफरतें खत्म, और जिनके घर में बेटे नहीं होते, सूरतुल काफिरून उसका इलाज है।
जिनके घर में झगड़े होते हैं सूरत अल-काफिरून उसका इलाज है, और जिनके घर में नफरतें, दिल टूटे हुए हैं सूरत अल-काफिरून उसका इलाज है, और जिनके घर में सदा के मसाइल और मुश्किलात हैं, कहते हैं बचपन से लेकर 55 तक आंख खोली थी मुश्किलात और मसाइल देखे सूरत अल-काफिरून उसका इलाज है। जो कहते हैं जादू का इलाज हमारे पास नहीं है उसका कर दें, वो सूरत अल-काफिरून के हल्के की कदरदानी करे उसका इलाज है। जो कहते हैं जिन्नात ने हमें सताया हुआ है सूरत अल-काफिरून के हल्के की इज्जत करें उसका इलाज है। जो कहते हैं हर वक्त नजर लग जाती हमें और हमारी चीजों को, हमें और हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को, सूरत अल-काफिरून के हल्के में जम के बैठे, ये उसका हल है। और जो कहते हैं जिंदगियों की नाकामियां और परेशानियों ने मुझे घेर लिया है, सूरत अल-काफिरून उसका आखिरी हल है, कदर करके देखे। तस्बीह खाने का कोई अमल ऐसा नहीं है जो बेकार बनाया गया हो, अपनी मर्जी से तरतीब दिया गया हो। इसके हर अमल में खैर और बरकत के दरवाजे, राहत के दरवाजे, रहमत के दरवाजे, खुशियों के दरवाजे और आपकी जिंदगी के मसाइल का बेहतरीन हल तस्बीह खाने के हर अमल में है। आखिरी अशरा, आज की ताक रात और आखिरी अशरे की मुबारक सातें, खुशकिस्मत होगा जो तस्बीह खाने में अपना कयाम करेगा, मोबाइल बंद कर देगा, बाहर निकलना बंद कर देगा और कहेगा उठ बुलिया चल यार मनाइए, नतबाजी ले गए कुत्ते तय तो उत्ते, दर साईं दा मोल न छोड़न तोड़ी मारो 100 जुत्ते तय तो उत्ते। हमारा जनरेटर वाला एक साथी, मैंने थोड़ा सा डांट दिया और घर चला गया नाराज होके। फिर मैंने उसको मनाया, आज के बाद मैंने कहा भी तू मेरा पीर मैं तेरा मुरीद, और मैंने उसका कहा आइंदा के लिए उसको उस्ताद कहा करो। हाय हाय, फिर मुझे मेरा मुर्शिद याद आता है। यकीन जानिए जलाल में थप्पड़ और क्या कुछ, और सर यूं झुका होता था, पता नहीं अल्लाह कहां से सब्र दे देता था। और मैं समझता हूं उन्हीं की बरकत है, उन्हीं की तवज्जुहात है, महज अल्लाह का फजल है। और ये अल्लाह पाक निजाम चला रहा और अल्लाह पाक ये खैर के दरवाजे और मखलूक को मुतवज्जे कर रहा। हम तो थोड़ी सी बात कह दें तो बंदा इधर से उधर गया। ये अल्लाह ने सादतें दी हैं, नेमतें दी हैं। तस्बीह खाने के दस्तरखान रूहानी भी जिस्मानी भी, और तस्बीह खाने के दस्तरखान रूहानी भी जिस्मानी भी। खुशकिस्मत इंसान होगा, खुशकिस्मत इंसान होगा जो अपने आप को तस्बीह खाने में 10 दिनों में कैद कर ले और अपने मोबाइल को बंद कर दे और अपने लम्हात को कीमती बना ले, और फैसले के दिन, फैसले की रातें, फैसले की घड़ियां, फैसले के लम्हे। अल्लाह करीम है, अल्लाह किसी की मुशक्कत को जाय नहीं करता। रब से बड़ा कायनात में कदरदान कोई है नहीं। खुशकिस्मत हो, तस्बीह खाने में चल के आए हो, कोई किस शहर से, कोई किस मुल्क से, कोई दुनिया के किस हिस्से से और कोई पाकिस्तान के किस हिस्से से, तस्बीह खाने में चल के आए हो। हुजूम आशिका है, सुना है दर यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है, हुजूम आशिका है। और अजीब बात, शिया इसमें है, अहले हदीस इसमें है, देवबंदी इसमें है, बरेलवी इसमें है। मजा आया ना आया है? हाँ। और सब एक दूसरे से प्यार, मोहब्बत, रवादारी और बर्दाश्त करके चल रहे हैं। आखिरी अशरा बहुत हसास है, ख्याल से चलिएगा। आखिरी अशरा है, बहुत हसास है, ख्याल से चलिएगा। आखिरी अशरा है, बहुत हसास है। थोड़ी थोड़ी चीज में गुस्सा दिला देगा, थोड़ी थोड़ी चीज में अना का मसला बना देगा। कभी गुस्ल खाने में, कभी वुजू खाने में, कभी खाना खाते हुए, कभी बोटी के लुकमे के नाम पे, कभी पहले बैठने और जिस जल्दी उतरने में, कभी अगली सफ में मैंने, और छोटी छोटी चीजों पे अपने हौसले, अपना सब्र, अपना दिल, अपना बर्तन बढ़ाते चले जाएं। रब बड़ा करीम है जो माफ करता है, बर्दाश्त करता है। रब उसको अपने गैब के खजाने से माला माल कर देता है। अल्लाह के हबीब का फरमान है, मन तवाज़ा लिल्लाह, ऐसे है जिसने अल्लाह के लिए झुक गया, अल्लाह के लिए, लिल्लाह 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 लिल्लाह, अल्लाह के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। अच्छा माफ कर दिया, अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा कोई हर नहीं, रमजान है, रोजा है,
उस बेचारे को रोजा लगा हुआ होगा। अच्छा कोई हर्ज नहीं। जब ये करते करते दिन गुजारे, मेरे रब का हुक्म नहीं, मेरे रब का फरमान, मेरे आका मदीने वाले ने फरमाया, मेरा अल्लाह कहता है उसे मैं ऊंचा इज्जत दे के ऊंचा करके दिखाऊंगा और जमाना देखेगा, उसे वकार दे के देखूंगा, उसे इज्जत दे के देखूंगा और उससे दुनिया को दिखाऊंगा। इसे इज्जत कहते हैं, दुनिया को दिखाऊंगा इसे वकार कहते हैं, दुनिया को दिखाऊंगा इसे सरबलंदी कहते हैं। जो मेरी खातिर माफ करना सीख गया, वो औरत है या मर्द है, दरगुजर करना सीख गया। आखिरी अशरे की कीमती सातें, आखिरी अशरे की कीमती लम्हे और आखिरी अशरे के दिन और रात, आखिरी अशरा। मेरी मिन्नत है इस पसीने की कदरदानी करना। ये क़यामत के दिन शहदा के कतरों के तोला गया तो काम बन गया। मेरी मिन्नत है इस सुबह शाम की कदरदानी करना, इस लंगर की कदरदानी करना, इतराज न कर बैठना, इस टूटी चटाई की कदरदानी करना, इतराज न कर बैठना, और इस टूटी बिल्डिंग की कदरदानी करना, इतराज न कर बैठना, इस सादा जिंदगी की कदरदानी करना। रब तुम्हें वो कदरें देगा, इज्जतें देगा, तुम्हारी और तुम्हारी नस्लों को। अल्लाह बड़ा करीम है, सही है, शहनशाह है, लजपाल है। अल्लाह इज्जतें देने पे आए तो दे के दिखा दे, एक पल में जलील करने पे आए तो करके दिखा दे। वह तो इज्जो मन तशा, उसके हाथ में है, वह तो जिल्लो मन तशा, उसके हाथ में है, उसके निजाम में है। ये पसीना मशक्कत नहीं, रहमत है। लोग तो मशक्कत कर करके इसको लाते हैं। लोग तो पता नहीं सादा ग़िज़ाओं के पीछे इस वक्त दौड़े हुए हैं। जहां मकई की रोटी और साग हो वो होटल सबसे ज्यादा बेहतरीन होती है, जहां गुड़ की चाय मिले उस होटल पे स्पेशल खाने जाते हैं। आजकल तो कुछ होटलें दाल वाली होटल हैं, यहां स्पेशल दाल मिलती है। दुनिया सादा ग़िज़ाओं की तरफ फिर दौड़ निकली, थक गई है रंग बिरंगी गोलियों से भी और बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल और अस्पतालों से भी, और दुनिया थक चुकी है, परेशान है। लौट आओ उस जिंदगी की तरफ जो मेरे आका मदीने वाले ने दी है। वो जिंदगी ये है जो तस्बीह खाने में एक हल्का सा अक्स हम आपको दिखा रहे। पूरी जिंदगी हम नहीं दे सकते, एक हल्का सा अक्स दिखा रहे कि इस हल्के से अक्स में ये जिंदगी का चैन, सुकून, राहत, रहमत, बरकत, इज्जत, शान और शौकत है। तो पूरी जिंदगी में भला क्या होगा? मदीने वाले की पूरी जिंदगी में क्या होगा? इसके एक एक पल में बरकत है। और आज आप खुशकिस्मत हैं, आज एक अमल हो रहा। अभी इंशाअल्लाह हम दुआ के बाद हम 10 मिनट का वक्फा देंगे, कोई वुजू करना चाहे, उसके बाद एक अमल हो रहा और वह है सूरत अल कौसर बैठ के मिल के पढ़ेंगे। 129 दफा सूरत कौसर पढ़ें तो रिज़्क़ के रब दरवाजे खोल दे। और आज अगर हम लाखों की तादाद में बैठ के इस ताक रातों में और परदेशी मुसाफिरों के साथ बैठ के पढ़ेंगे, रब क्या रिज़्क़ और बरकत के दरवाजे खोल देगा। ये आज जो अमल हम कर रहे, ये कर्जों के लिए और रिज़्क़ की वुसअत के लिए और रिज़्क़ को बढ़ाने के लिए और नस्लों के लिए, बेबहा रिज़्क़ के लिए आखिरी चीज है। शामिल होना चाहें तो हो जाएं, सोना चाहें तो सो जाएं, जाना चाहें तो चले जाएं। बाकी ये मैखाना तो खुला रहेगा। सुना है दर यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है। ये तो खुला रहेगा। इंशाअल्लाह हर ताक रात में एक खास अमल होगा, हर ताक रात में एक खास पैकेज मिलेगा और हर ताक रात में अनोखी रहमतें और बरकतें और दुनिया आखिरत के फैजान और दुनिया आखिरत के मसाइल का हल हर ताक रात में। मजा ना आ गया है? हाँ है जी। हमारी तरतीब यह है कि हम हर रात में दर्स के बाद सवालों के जवाब कुछ बातें करते हैं। ताक रातों में ये अमल करेंगे, अगली रात में हम सवालों के जवाब करेंगे। क्या ठीक तरतीब है? ताक रात में हम ये अमल करेंगे, हर ताक रात में अमल होगा। अगली रात में, अब कल जो इंशाअल्लाह रात आएगी उसमें हम मिल बैठेंगे, कुछ मेरी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे, आपके सवालों के जवाब जो हमारी तरतीब पहली रमजान से चल रही
इंशाल्लाह वो भी चलेगी। क्या ख्याल है? जैसे कल बहुत से सवालों के जवाब मिले और माशाल्लाह आपको बहुत फायदा हुआ, खुद मुझे फायदा हुआ। आज ताक रात है और ताक रात में सूरत कौसर का अमल फरमाया, जिसने ज़ियारत दीदार मुस्तफा चाहता हो सूरत कौसर पढ़े। जो मैं एक बात बताऊं, मुझे एक बंदा कहने लगा फलां ने मुझ पे जादू किया। मैंने क्या किया? किसी ने मुझे बताया कि तू 41 दफा सूरत कौसर पढ़ और उसमें है ना इन नशानिया का हो अब तक कि तेरा दुश्मन क्या होगा, उसकी हालत अबतर हो जाएगी। वो देखे ना, अबतर हो गया हालत, कहते नहीं है तेरे दुश्मन की हालत। वो दुश्मन जादू है, वो दुश्मन जिन्नात है, वो दुश्मन इंसान है, वो दुश्मन कोई भी है, उसकी हालत अबतर हो जाएगी, वो अबतर हो जाएगा। कहा मैंने 41 दफा पढ़ा, मैंने अपनी आंखों से देखा जिसने मुझ पे जादू किया उसकी हालत अबतर नहीं अबतर से बदतर हो गई। ये सूरत कौसर अनोखे अनोखे रोगों का इलाज है और अनोखी बरकतें इसमें हैं, और खास तौर पे रिस्क और वुसअत और कर्जों के लिए तो लाजवाब चीज है। और जो अल्लाह के खजानों से फिर दुनिया हसनतों चाहता है माला माल, उसके लिए एक बेहतरीन ये तोहफा है। अल्लाह पाक मुझे आपको कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुझे सच्ची कदरदानी दे, आपको सच्ची कदरदानी दे, और तस्बीह खाने की इस कदरदानी हमारे दिल में बढ़ती चली जाए। कहीं ऐसा ना हो इतने कच्चे हो जाएं हमारे जज्बे और हमारे दिल और हमारी तबीयतें, करीब बैठा बंदा थोड़ा सा शिकवा कर दे। बाज लोग ऐसे होते हैं जो पता नहीं रब से भी राजी होते या नहीं होते। मैंने जिंदगी में तजर्बे किए हैं और बड़ों से सुने हैं, उनके मिजाज में दिन रात शिकवा एतराज, शिकवा एतराज, शिकवा एतराज। वो ऐसे कच्चे न हो जाएं कि उसने तो जिंदगी का मिशन यही बना रखा और उसने थोड़ा सा शिकवा एतराज किया और मैं भी शक में पड़ गया। इसका मतलब है कि थोड़ी देर के बाद कोई मेरी माँ बाप पे शिकवा एतराज करेगा, मैं शक में पड़ जाऊंगा, माँ बाप के गवाह ढूंढना शुरू कर दूंगा, पता नहीं अम्मा अब्बा का निकाह था या बस ऐसी कहानी चल रही है। इसका मतलब है फिर उसकी तहकीक में लग जाऊंगा, फिर यकीन तो ना हुआ, एतमाद तो ना हुआ, फिर जिंदगी बेयकीनी और एतमाद से गुजरते गुजरते यहां तक कि जिंदगी गुजर जाएगी, मजा तो ना आया। तो यकीन की ताकत के साथ, अदब के साथ और बरकत के साथ और सच्चे जज्बे और सच्चे वलवले के साथ इंशाअल्लाह हमने चलना है, बर्दाश्त करते हुए, दरगुजर करते हुए, अल्लाह के लिए माफ करते हुए और शुक्र करते हुए, शिकवा ना करते हुए ये चंद रातें, चंद दिन गुजारनी है। और इंशाअल्लाह हर रात में अनोखा अमल, अनोखी दुआएं और हर ताक रात में एक खास और खास तोहफा इंशाअल्लाह मिलेगा। क्यों? बाज़ इंसान खुद ऐसा नहीं होता, लेकिन उस मजमे में कोई एक ऐसा होता है जिसकी वजह से सबकी कबूल है। एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि दो फरिश्ते कह रहे, इस दफा 6 लाख बंदे थे हज में, पुरानी बात है, 6 लाख बंदे थे और किसी के एक का हज भी कबूल नहीं हुआ। फरमाया को 6 बंदे ऐसे थे, उनके हज की वजह से अल्लाह ने सबका हज कबूल कर दिया। कितना मजमे में कौन होगा, अल्लाह का उससे क्या ताल्लुक होगा, उस परदेशी की अल्लाह से क्या तार लगी होगी, उस बंदे की अल्लाह से क्या मोहब्बत होगी, और वो अल्लाह से कहेगा तो मेरा रब कर देगा और उसकी वजह से अल्लाह मेरा भी काम बना देगा और मेरी भी सूरत कौसर और मेरा बहाव पसीना भी कबूल कर लेगा। तो कदरदानी बढ़ती चली जाए, तबीयतों में कदरदानी आती चली जाए, इससे अल्लाह करीम दुनिया भी बनाता है, आखिरत भी बनाता है। नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमईन, आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इंशाअल्लाह 10 मिनट के बाद आप हजरात फौरन फ्रेश हो जाएं, तैयार हो जाएं, जिनका वुजू है वो बैठे रहें और जिक्र करते रहें। 10 मिनट के बाद इंशाअल्लाह ये अमल शुरू होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اللہ پاک جل شانہ ہمارے اس عمل اور سعادت کو قبول فرمائے. جتنا دھیان عمل میں ہوگا، یقین ہوگا، توجہ ہوگی اور اللہ کے وعدوں پہ یقین ہوگا، اتنا اللہ غیب کے خزانے سے ہماری ضرورتوں کو، دنیا آخرت کے رزق کو، رزق جسمانی اور رزق روحانی کو پورا فرمائیں گے اور غیب سے عطا فرمائیں گے. جتنی عظمت ہوگی عمل میں، جتنی قدردانی ہوگی اور جتنا یقین ہوگا، اللہ کے وعدوں کا استحضار ہوگا، اور اتنا اللہ غیب کے خزانے سے عطا فرمائیں گے. توجہ سے بیٹھ کے پڑھیں گے، ادھر ادھر توجہ نہ ہو، موبائل کی طرف توجہ نہ ہو، بلکہ دھیان ہو. اور جو بیٹھے ہیں گٹھلیوں والے حضرات، وہ ایک دیکھتے رہیں گے جہاں گٹھلیاں تھوڑی ہیں. اس دن میں گٹھلیاں پڑھ رہا تھا، ایک بندہ آ رہا تھا، بار بار میرے سامنے ڈالے جا رہا تھا، وہ ڈھیر لگا دیا. اس نے کہا شاید سرکار سب سے زیادہ پڑھتے ہیں. وہ میرے سامنے ادھر سے آئے میرے سامنے ڈالے، ادھر سے آئے میرے سامنے ڈالے، ادھر سے آئے میرے سامنے ڈالے. ٹھیک ہے میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن سب کو حق دیا جائے. یہ گٹھلیوں کے سب کے ہاتھ لگنے چاہیے اور برکت ہونی چاہیے. تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم دعا کریں گے، اللہ پاک قبول فرمائے. اول آخر 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ درود پاک پڑھیں گے، بعد میں بھی درود پاک پڑھیں گے اور بسم اللہ کر کے شروع کریں گے. شروع کیجیے. ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھیے. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام. اللہ ہماری حاضری قبول فرما، اس پڑھنے کو قبول فرما، اور اپنی صورت کے جتنے بھی وعدے اور برکات ہیں سارے کے سارے ہمیں بھی اور پوری امت کو بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی قبول فرما اور عطا فرما، عطا فرما، عطا فرما. محروم نہ فرما، محروم نہ فرما. وحی کی برکت قرآن اور حدیث وحی ہے، یا اللہ وحی کی برکتیں سدا ہمیں عطا فرما. اس صورت کی جتنی بھی برکات ہمارے سامنے موجود ہیں یا نہیں ہیں اور تیرے پاس ہیں، ہمیں علم ہے یا نہیں ہے، اللہ وہ ساری کی ساری پوری امت کو اور ہمیں خاص طور پہ عطا فرما. اللہ اس کی برکتیں عطا فرما، اس کا نور عطا فرما، اس کی روحانیت اور نورانیت عطا فرما، اور ہماری نسلوں کو محروم نہ فرما. ہمیں بھی دے دے، ہماری نسلوں کو بھی دے دے. رزق کی برکت دے، عافیت دے، اور غیب کے خزانوں سے رزق کے دروازے کھول دے اور برکت کے دروازے کھول دے. اللہ قرض داروں کے قرضے دور فرما، بیماروں کی بیماریاں دور فرما، مشکلات اور مسائل حل فرما. جتنے بھی تیرے بندے یہاں سے یا پردیس سے آئے ہیں، اللہ ان سب کی حاضری قبول فرما کر ان کی نسلوں کو خیر سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے اور برکتوں سے بھر دے. اللہ ان کی مشکلیں دور فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ جن کے رزق میں برکت نہیں، برکت دے دے. اللہ جن کی جادو بندشیں یا کوئی حسد کے اثرات ہیں ختم فرما دے. یا اللہ سب کے ساتھ عافیت اور بھلائی کا معاملہ فرما.
रिस्क और रहमत का मामला फरमा, फजल और करम का मामला फरमा। तेरे बंदे आए हैं या अल्लाह, इनकी हाजिरी को कबूल फरमाकर वापसी में इनकी झोलियां भर दे, इनमें किसी को खाली ना भेज। इनको सब बंदों को अपनी रहमत दे दे, अपना फजल दे दे, अपना करम दे दे, अपनी खास अता दे दे। या अल्लाह महरूम भी ना फरमा और कबूल भी सदा फरमा। हमारे लफ्जों लहजों की गलतियां माफ फरमा और सूरत कौसर को क़यामत में हमारा साथी बना, दुनिया में हमारे लिए साथी बना। और अल्लाह इसके जरिए से दीदार मुस्तफा अता फरमा और इसके जरिए से हसद और साजिशों को दूर फरमा। अल्लाह इसके जरिए से फितनों के दौर के फितने खत्म फरमा, हमारी नस्लों को फितनों से दूर फरमा, आफियत के फैसले फरमा, रिस्क के फैसले फरमा, कर्जदारों के कर्जे दूर फरमा। या अल्लाह जो मांगा अता फरमा, जो नहीं मांगा अता फरमा। नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अपनी जगह बैठे रहें, कुछ ऐलानात थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं। जो हजरात आज तशरीफ लाए हैं उन हजरात के लिए भी और पहलों के लिए भी दस्तरखान पे फौरन तशरीफ ले जाया करें और दस्तरखान के लिए जब बुलाएं तो फौरन अपनी उस वक्त नफलें मौखर कर लें, बाद में पढ़ लें और दस्तरखान पे जितनी जरूरत हो जी भर के खाएं। उसके बाद दस्तरखान से हट जाएं ताकि औरों को मौका मिले। और दस्तरखान वक्त थोड़ा होता है, फौरन समेटना होता है। और गुस्लखाने में जाते हुए इस बात का ख्याल रखें कि बाहर लाइन लगी हुई है ताकि हमारी जात से किसी को तकलीफ न पहुंचे। पानी इस्तेमाल भी करना है, पानी भी बचाना है और वक्त भी बचाना है। बाहर वालों का ख्याल रखना है, वुजू करते हुए भी ऐसी है, गुस्ल खाने में भी सफाई का ख्याल रखना है। और खाना उतना लें खा सकें, खाने की रोटियों के टुकड़े न हो, जाए न हो। और जूते अपने ही इस्तेमाल करें, मेरी दरखास्त है। और बिस्तर समेट के रखें ताकि नमाज के लिए भी रुकावट ना हो, वैसे भी रुकावट ना हो। और किसी की गिरी पड़ी चीज जो है उसके बारे में एहतियात करें, कहीं खुदा न खास्ता हम गुनहगार न हो जाएं। और किसी के लिए सवाल के दरवाजे ना खोलें, उसको अपने गम की कहानी सुनाएं, मोबाइल उससे आर्जी मांगे, बैलेंस मांगे, पैसे मांगे, ये तरतीब ना हो। यहां सवाल के दरवाजे ना खोलें, यहां सवाल के दरवाजे ना खोलें, उससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और ये सारे हजरात इस तेल में पानी में दम जरूर कीजिएगा, फिर यही तेल पानी आप हजरात को दिया जाएगा और यही तेल पानी आपको इंशाल्लाह तोहफे में दिया जाएगा। और इसके बड़े रिजल्ट हैं, हर साल हम देते हैं और हैरत अंगेज इसकी बरकतें मिलती हैं। तो ये हिदायत हैं, आपकी खिदमत में दरखास्तें हैं, आपसे अर्ज कर रहा हूं। इंशाअल्लाह इसको करते रहेंगे। बाकी मजमा ज्यादा है, दूसरी बिल्डिंग भी हमने खोल दी है, इसमें एक दूसरे की रियायत करते हुए, मोहब्बत करते हुए, प्यार करते हुए और दरगुजर करते हुए चलेंगे। खवातीन भी मेरी बात सुन रही हैं, आप भी। अल्लाह पाक हम दुनिया आखिरत की हमें इंशाअल्लाह भलाइयां दे के भेजेंगे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानकल्लाह।